ڈپٹی کمشنرز کو 7 روز کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا۔ ہوم سیکرٹری ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ گورنر نے دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب انفورسمنٹ ایکٹ بھی منظور۔ ایک ماہ سے زائد عرصہ کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار کابینہ کو ہوگا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو 7 روز کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا۔ ہوم سیکرٹری ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ گورنر نے دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب انفورسمنٹ ایکٹ بھی منظور۔ ایک ماہ سے زائد عرصے کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار کابینہ کو ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر سے۔ جی ظفر ڈوگر صاحب آگاہ کیجیے گا۔ جی بہت ہی اہم فیصلہ ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو کیا ہے۔ گورنمنٹ پنجاب نے منظوری دی ہے، پنجاب انفورسمنٹ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کو منظور کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جو مجوزہ تبدیلیاں تھیں اور اب ایکٹ بن گیا ہے، اس کے مطابق جو کسی بھی علاقے میں، کسی شہر میں یا اس کے کسی مخصوص علاقے میں ایمرجنسی کی صورتحال میں یا مخصوص حالات میں جب حکومت کو یا متعلقہ ضلع کے ڈی سی کو یہ اختیار ہو، جب یہ ان کو اطمینان ہو کہ اس علاقے میں حالات خراب ہیں یا نقص امن عامہ کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے اس ضلع میں یا اس کے کسی خاص علاقے میں 7 دن تک کے لیے دفعہ 144 نافذ کر سکے گا۔ پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ یہ دفعہ 144 کا نفاذ کرتا تھا، اب 7 دن کے لیے کسی بھی ضلع میں یا اس کے کسی خاص علاقے میں دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو دے دیا گیا ہے۔ اگر صوبہ بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہو ایک ماہ کے لیے تو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کر سکے گا، اور اگر ایک ماہ سے زیادہ ایمرجنسی نافذ کرنا ہو تو پھر یہ اختیار کابینہ کے پاس ہوگا۔ یہ ترمیم ہوئی ہے اور یہ موجودہ سیاسی حالات میں یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ ترمیمی ایکٹ جو منظور ہوا ہے۔ اور دفعہ 144 کے حوالے سے یہ بتانا بہت اہم ہوگا کہ اس میں 4 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی ہوتی ہے، اور اس کے تحت کسی بھی قسم کی کوئی حکومت ریاست مخالف جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی، اور مخصوص حالات جس میں نقص امن عامہ کا خدشہ ہو، دہشت گردی کا خطرہ ہو، یا کسی اور قسم کا اگر فوگ کی کیفیت ہو، فوگ کا خدشہ ہو، تو کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، دکانیں کھولنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے اس کے تحت اختیارات مل جاتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو کہ وہ عوام کے مفاد میں کسی بھی خاص صورتحال میں جہاں وہ سمجھے کہ نقص امن عامہ کو خدشہ ہے یا صحت عامہ کو خدشہ ہے، عوام الناس کی پراپرٹی یا ان کی جان یا مال کو خدشہ ہے، تو وہ دفعہ 144 نافذ کر سکتا ہے۔ اب کسی بھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر اپنے علاقے میں، پورے ضلع میں یا اس کے کسی خاص علاقے میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر سکے گا، یہ منظوری دی گئی ہے۔ اور ایک ماہ کے لیے ایمرجنسی لگانا ہو، ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنی ہو تو یہ اختیار ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوگا، اور اگر اس سے بھی زیادہ لگانا پڑے، اس سے زیادہ عرصے کے لیے، تو یہ اختیار پھر صوبائی کابینہ کے پاس ہوگا۔ جی ہوم سیکرٹری ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ گورنر نے دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ظفر ڈوگر صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر درآمد کنندگان مشکلات کا شکار۔ ایف بی آر اور کسٹم قوانین نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کام مشکل کر دیا۔ درآمد کنندگان سے اسیسمنٹ ویلیو کی بنیاد پر بھاری بھرکم کسٹم ڈیوٹی چارج کی جانے لگی۔ صدر ریکس مارکیٹ ایسوسی ایشن غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت کے منافی اسیسمنٹ سمجھ سے باہر ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، آئی ٹی انڈسٹری جہاں بہت ساری جدت سے محروم ہے، تو وہیں ایک نیا مسئلہ جو ہے اس وقت آئی ٹی کے تاجروں کو، کمپیوٹر تاجروں کو جو ہے وہ درپیش ہے، جس میں اسیسمنٹ ویلیو ہے کہ درآمد کنندگان جو ہیں وہ جب کوئی بھی چیز درآمد کرتے ہیں تو اس کی اسیسمنٹ ویلیو جو ہے وہ انتظامیہ اور اداروں نے اپنی لگائی، جس پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا۔ ہمارے صدر موجود ہیں انجمن تاجران ریکس سٹی کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر صاحب کیا کہیں گے، کیا اسیسمنٹ ویلیو کے ایشوز ہیں؟ یہ کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں۔ اسیسمنٹ ویلیو کا مین ایشو یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ویلیو ایک ایف بی آر کی طرف سے ہمارے یہ پروڈکٹ آئی ٹی کی پروڈکٹ ہے وہ بالکل ریئلسٹک نہیں ہے۔ ریئلسٹک مین اٹ از ناٹ میچنگ ود دا ایکچوئل مارکیٹ پرائسز۔
اب ایک چیز ایکچوئل مارکیٹ پرائس کے ساتھ میچ ہی نہیں ہے تو اس کا جب اس کو بیس بنا کے آپ ڈیوٹیز لگائیں گے تو وہ ڈیوٹیز صحیح نہیں لگیں گی. ٹھیک ہے, اس میں پرابلم پھر کیا بنتی ہے, جو امپورٹرز ہیں وہ کوئی چور راستے ڈھونڈیں گے کہ یار ہم نے مارکیٹ میں چیز سیل بھی کرنی ہے, کہ مارکیٹ میں چیز سیل 3,000 روپے کی ہو رہی ہے, ایف بی آر والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حساب سے 6,000 روپے کی, ہم نے 6,000 روپے کے حساب سے ڈیوٹی لینی ہے. لیکن مارکیٹ میں آپ دیکھیں, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے پرائسز ڈاؤن ہوتی ہیں, نیو ٹیکنالوجی آتی ہے, پرانی ٹیکنالوجی کی یک لگ پرائسز ڈراپ کر جاتی ہیں. ٹھیک نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں کو حقائق کے جو ہے منافی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عین مطابق ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے ایک سسٹم, ایک کمپیوٹر, ایک ماؤس, ایک کی بورڈ کس ویلیو کا ہے, اسی مطابق اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ہو. جس بنا کے اوپر زیادہ جو ہے کاروبار مندے کا شکار ہو رہا ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ ریموو کیا جائے. جی بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں, فیصل آباد میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بری طرح متاثر. ای کامرس سے جڑے تاجروں نے سر پکڑ لیے. تاجر کہتے ہیں ایک واحد شعبہ تھا جو پیچیدہ حالات میں چل رہا تھا, حکومت نے ای کامرس کو بھی ناممکن بنا دیا. مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے. جی شیراز. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے. گزشتہ 3 دن سے انٹرنیٹ سروس نہ ہونے کی وجہ سے آئی ٹی کے کاروبار سے ریلیٹڈ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں, کاروباری لوگ ہیں, فری لانسرز ہیں, ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ راج میڈیا لنک سے رضا صاحب موجود, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. رضا بھائی, آپ کا سارا دار و مدار جو ہے کاروبار کا وہ انٹرنیٹ کے اوپر, انٹرنیٹ اگر نہیں چلتا ہے تو کس پریشانی کا سامنا ہوتا ہے؟ جی بٹ صاحب بہت شکریہ, 41 کا شکریہ کہ اس نے اس طرف توجہ دلائی. یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ہماری قسم کی آکسیجن بن چکی ہے اب, اور میں تو سخت الفاظ میں کہوں گا کہ IMF ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں جس بھی ادارے میں آپ جائیں, بجلی دیکھ لیں, صنعت کار دیکھ لیں, فیکٹریز دیکھ لیں, لیبر دیکھ لیں, مزدور دیکھ لیں, ایوری باڈی پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ لوگ ہمیں اٹھنے ہی نہیں دے رہے. یہ بھی ایک لابی ہے نا, یہودی لابی ہے. اچھا, اب رہ گیا تھا آئی ٹی میں یہ تھا کہ ہماری انویسٹمنٹ کم از کم ہوتی, ٹیلنٹ زیادہ استعمال ہوتا تھا کہ ہم خود کفیل ہو سکتے تھے, ہم اس قابل ہو سکتے ہیں آئی ٹی میں کہ ہم اپنے قرضہ جا جو ہے نا وہ ملک پہ اتار سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. آئی ٹی کے بغیر تو آپ کو پتہ کہ آج کل جو ہے سسٹم وہ بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے. اور پہلے آپ دیکھیں, ہم اگر کوئی پوسٹ پیڈ ہے یا کوئی پری پیڈ ہے, کمپنیز کی بات کر لیتے ہیں, اس میں دیکھ لیں کہ وہ ہم پیسے ان کو دے رہے ہیں بٹ سروس زیرو. ٹھیک ہے, آئی ٹی کا بیڑا غرق ہونے سے بچایا جائے, اور خاص طور پر آئی ٹی کا کاروبار جو ہے شدید متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سے 3 دن سے جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہے. 40 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان کے اندر, اور اس وقت ای کامرس کے کاروبار سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے جو کہ متاثر ہو رہا ہے. جی شیراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی نے فیصل آباد کے لنڈے بازار کو بھی گھیرے میں لے لیا. لنڈا بازار اب سستے رہے نہ ہی سستے بازار بچے ہیں. ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے. برتن, کپڑے, بیگ اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں, مہنگائی نے فیصل آباد کے لنڈے بازار کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فسی نقوی سے. جی فسی. جی بالکل, مہنگائی کے وار جاری ہیں اور گزشتہ 2.5 سے 3 سال کا عرصہ خاص طور پر دیکھا جائے تو اس دورانیے میں جو ہے وہ جتنی بھی تمام تر جو بازار لگا کرتے تھے شہر فیصل آباد کے اندر, چاہے وہ سستے بازار ہوں یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لنڈے بازار ہوں, وہاں پر جو جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اس وقت یہ کلیم شہید پارک کا یہ جتنا بھی آپ میرے طرف میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ لنڈا بازار ہے جہاں پر جو ہے وہ ہر جمعے والے دن جو ہے وہ یہاں پر بازار لگتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو جتنے بھی شہری یہاں پر خریداری بھی کر رہے تھے ان سے بھی جو بات چیت کی گئی ہے تو جو چیز پہلے 50 روپے کی ہوتی تھی اب 60 سے 70 روپے تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح جو چیز پہلے ہوتی تھی وہ اب 120 سے 150 تک پہنچ چکی ہے. آپ میرے طرف میں مختلف سٹالز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں. سر ادھر آئیے گا ذرا, یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ لگائے ہیں لیس وغیرہ, یہ پہلے کتنے کے بیچتے تھے آج سے سال پہلے اور اب کتنے کی ہے؟ پہلے 10 روپے کی سیل ہوتے تھے, اب 20 روپے کی سیل ہوتی ہے یہ چیز. کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ 10 روپے کی تھی؟ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے. 1.5 سال پہلے یہ کتنے کی تھی؟ 10 روپے کا. اور اب کس طرح دے رہے ہیں؟ اب 20 روپے کا. اور باقی جو چیزیں لگائی ہیں آپ نے جس طرح جویلری وغیرہ لگائی ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ وہ ہمارا اسٹال نہیں ہے, وہ کسی کا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ اور بھی موجود ہیں لوگ, آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آپ یہاں پر لگایا ہوا ہے تو کس حد تک مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ مہنگائی ہے بس, اور کیا ہے. مہنگائی ہی مہنگائی ہے. جو پہلے فراق جو ہے وہ کتنے کا فروخت کرتے تھے اور اب کتنے کا فروخت کر رہے ہیں؟
आगे 500 का बेचते थे, 1500 का बेचते थे, 1200 का बेच देते हैं। अच्छा, बिक भी जाता है, बिक जाता है। बिक जाता है। अब आम जो आपसे खरीदार शहरी इससे भी अच्छा दे दो कोई। दे दे। हाँ, महंगाई का ले जी, ये आप बताइएगा जी, आप क्या बेच रहे हैं? ये पौने बेच रहे हैं। ये कितने के होते थे पहले के? पहले ये 10 रुपए का होता है, 50 रुपए का। आप 50 रुपए का दे रहे हैं, तो कितने ये साल में इतना फर्क आया? साल में ये 3-4 साल में फर्क आया बहुत। आज से जाओ 17-18 ये 10 रुपए का जी, आज ये 150 रुपए का। ठीक है, 50 रुपए का एक दे रहे हैं। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि जो महंगाई है वो आए रोज बढ़ती जा रही है, इसको किस तरह काबू किया काम जाए? करनी चाहिए हुकूमत को, अल्लाह करे इन्होंने अकल आ जाए, काम कर दें। बिक रहे हैं या क्या कहती है वहाँ? काम बेच रहे हैं, कम बिक रहे हैं। काम बेच रहे हैं। पहले कितने बेच लेते थे आप? पहले 4-5 दर्जन बिकती है, अब 1 दर्जन 2 दर्जन बिकती है। ठीक हो गया, तो यानी अब पैसे नहीं है लोगों के पास, सकत नहीं है। सही बात ये है। हाँ ये बात, पैसे तो नहीं। भी इसी के ऊपर गुजर बसर आपका सारा। अब क्या करें, करना पड़ता है, करेंगे बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर खरीदार भी है। बताइए जी, आपने शॉपिंग करके आए हैं, खरीदारी की है, तो कितना फर्क देख रहे हैं? कितने फर्क दे रहे हैं आप? फर्क महंगाई है इस दौर में, कितनी महंगाई है? महंगाई है और क्या है इसमें। 4 सूट लग रही है सर वो बात नहीं है, हम आप अगली तरफ आ जाए, आप इस वाली तरफ आ जाए ना। आपको महंगाई नहीं लग रही? आगे भी क्या हो रहा है? नहीं, आपको महंगाई नहीं लग रही? कान करिए रहा। ये देखें जी, यहाँ पर जो है वो आप शहरियों का रद्द-ए-अमल देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो यहाँ पर महंगाई के हवाले से शहरी भी परेशान है, ख़रीदार भी परेशान है, और उसके साथ साथ जो है वो दुकानदार जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं वो भी परेशान हैं। जी फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 1 में हेपेटाइटिस के मरीज इलाज से महरूम। 1 माह से हेपेटाइटिस सी की अद्वियात नायाब। अस्पताल इंतजामिया ने मलबा महकमा सेहत और महकमा सेहत ने अस्पताल इंतजामिया पर डाल दिया। इंतजामिया और महकमा सेहत की रस्साकुशी में मरीज अद्वियात के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल अलाइड अस्पताल 1 में हेपेटाइटिस सी की अद्वियात इस वक्त नायाब हैं, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जिगर के अमराज में मुब्तला मरीज तकरीबन 1 माह हो चुका है यहाँ पे अद्वियात अमले का कहना है कि ख़त्म है, और मजीद 15 से 20 दिन लग सकते हैं अद्वियात के फराहमी के हवाले से मरीजों को कुछ मुश्किलात का सामना है, जो यहाँ पे इलाज की खातर रुख तो कर रहे हैं, मगर हेपेटाइटिस सी की अद्वियात होने के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे हेपेटाइटिस सी की दवाई? सर ये एपिसाइड की जो मेडिसिन नहीं मिल रही है, हुकूमत से मुतालबा किया जाता है बराए मेहरबानी अवाम के लिए दस्तयाब करें, ठीक है, ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो कम से कम हो सके, ठीक है, मेहरबानी सर, थैंक। जो हेपेटाइटिस सी की अद्वियात न मिलने के सबब मरीजों को जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ जो मर्ज है जिगर का वो भी बढ़ता जा रहा है। हुकूमत से अपील की जा रही है कि हेपेटाइटिस सी की अद्वियात की फराहमी को यहाँ पे मुमकिन बनाया जाए। ताहम अलाइड अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि अद्वियात जो है वो महकमा सेहत ने फराहम करनी है, और महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि अद्वियात अलाइड अस्पताल 1 ने खुद लाहौर से लेके आनी है, तो ये अपना अमला नहीं भिजवा रहे अद्वियात के वो असूल के लिए, मगर इसमें जो है वो दरमियान में मरीज ख्वार हो रहे हैं। जी अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स का डेंगू एक्टिविटीज में सुस्ती बरतने का मामला। डायरेक्टर मॉनिटरिंग ने पंजाब के 10 अजला के सीईओज एजुकेशन से वजाहत तलब कर ली। फैसलाबाद, चिन्योट और झंग के सीईओज एजुकेशन भी शामिल। डेंगू एक्टिविटीज में सुस्ती बरतने पर वजाहत दी जाएगी। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। जी उस्मा, इन दिनों पंजाब भर में जो ग्रैंड टीचर अलायंस और पंजाब टीचर अलायंस है वो स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जो बेशतर पंजाब के स्कूल हैं उसमें मिडल तक जो तालीमी बाइकाट है मुकम्मल तौर पर किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि इन दिनों ये एम था इस ग्रैंड अलायंस टीचर्स का कि उनका कहना था कि इन दिनों में जो डेंगू एक्टिविटीज हैं वो नहीं होंगी, जिसके खिलाफ जो है वो रिपोर्टा रबाटी महकमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। और डायरेक्टर मॉनिटरिंग लाहौर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब के ऐसे 10 सीईओ एजुकेशन हैं जिन्होंने सुस्ती बरती है, और उनके खिलाफ अब एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉल कर ली गई है। इनमें फैसलाबाद डिवीजन से फैसलाबाद के सीईओ एजुकेशन, इसी तरह झंग के सीईओ एजुकेशन जो है वो शामिल है, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है, और उनके डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन भी इसमें वजाहत देंगे कि जो डेंगू एक्टिविटीज है उनमें सुस्ती क्यों बरती गई है। जी बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में कोल्ड स्टोरेज की कमी से आड़ती मुश्किलात का शिकार हैं। जिला का वाहिद कोल्ड स्टोर शोरकोट तहसील में मौजूद कोल्ड स्टोर सब्जी मंडी कई किलोमीटर दूर होने से सब्जियां और फल महफूज मुश्किल रखना। झंग सब्जी मंडी में रोजाना 2 से 4 हज़ार क्विंटल सब्जी और फल लाया जाता है। अपडेट कर रहे हैं, झंग में कोल्ड स्टोरेज की कमी से आड़ती मुश्किलात का शिकार हैं। जिला का वाहिद कोल्ड स्टोर शोरकोट तहसील में मौजूद है, लेकिन सब्जी मंडी
कई किलोमीटर दूर होने से सब्जियां और फल महफूज रखना मुश्किल हो गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, ज़िला भर में 2 से 4 हज़ार क्विंटल जो है वो सब्जियां और फलों की आमद होती है। ताहम कोल्ड स्टोरेजेस ना होने के बायस जो है इन फलों और सब्जियों को संभालना जो है वो आड़तियों के लिए एक मुश्किल अमर बन चुका है। ज़िला भर में सिर्फ एक कोल्ड स्टोरेज मौजूद है जो झंग से कई किलोमीटर फासला पे तहसील शोरकोट में वाक़या है। और इस हवाले से जो है अंजुमन आड़तियान के जनरल सेक्रेटरी गुड्डू खान में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या वजूहात हैं इसकी बिना के ऊपर जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो क्या मुमकिन नहीं हो पाए? ज़िला जंग जो है वो 40 लाख की आबादी का ज़िला है। इतनी और हज़ारों एकड़ पर सब्ज़ी काश्त होती है, सब्ज़ी भी काश्त होती है और फल भी मुख्तलिफ शहरों से यहाँ आते हैं, लेकिन इनको महफूज करने के लिए स्टोरेज नाकाफ़ी हैं। जो स्टोरेज में प्राइवेट तौर पर भी बने हुए हैं उनके वो इतने पुराने हो चुके हैं कि मौजूदा जदीद दौर के हिसाब से चीज़ों को महफूज रखने के लिए उनकी सलाहियत नाकाफ़ी है। नया स्टोर लगाने के लिए हुकूमत ने सिलसिला इतना मुश्किल कर दिया है, तकरीबन 10 मुख्तलिफ महकमों से NOC लेना पड़ता है और ये काम एक्सपेंसेस भी इतना ज़्यादा हो गया है, यानी खर्चा इतना ज़्यादा है कि मुश्किल बहुत हो गया है। इस महंगाई के दौर में अगर कोई स्टोर बनाना चाहे तो उसको 10-12 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है जी। लेकिन अगर हुकूमत चाहती है कि सब्जियाँ महफूज हो और लोगों को सस्ते दामों मिलें तो लोगों आड़तियों की मदद करे ताकि वो कोल्ड स्टोरेज लगाए। बैंकों को इस सिलसिले में हुक्म दे कि हमें खसूसी फाइनेंस करे, हम कोल्ड स्टोर लगाए ताकि सब्जियां स्टोर की जाए, फल स्टोर की जाए। इस तरह आम अगर सब्जियां और फल स्टोर किए जाएंगे और वो ख़राब नहीं होंगे तो लोगों को ये सस्ते दामों में मिलेंगे और पूरे साल मिलते भी रहेंगे, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। कहना है कि अगर जो हुकूमत जो है इसके हवाले से इकदाम मुमकिन करे तो मज़ीद कोल्ड स्टोरेज की तादाद में इजाफा किया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ जो सब्जी और फलों को महफूज रखना मुमकिन होगा बल्कि कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हवाले से भी मावन साबित होगा। जी अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के बाद बात करते हैं चिन्योट की सब्जी मंडी की। तो चिन्योट सब्जी मंडी में तजावुजात की भरमार, दुकानदारों ने 10-10 फुट तक कब्जा जमा लिया। मंडी आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। इसी पर मजीद बात करते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, शहर चिन्योट के अंदर सब्जी मंडी के अंदर तजावुजात की भरमार हैं। एक दुकानदार की जानिब से 10-10 से 15-15 फुट तक जो पुख्ता तजावुजात हैं वो की गई हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। मंडी के अंदर शहरी जो आने वाले शहरी हैं उनके लिए ना पार्किंग स्टैंड मौजूद है। शहरी खासे परेशान है, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं। इतनी ज़्यादा तजावुजात है, मंडी में गुजरना मुश्किल हो गया, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडी के दरवाजे पे और मंडी के अंदर 15-15, 20-20 फुट जो नजायज़ तजावुज़ात जो ठेले वाले खड़े हुए हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा करता हूं कि फिर फौरन इनको हटाया जाए। जब हम सब्ज़ी खरीदने के लिए आते हैं तो हमें पार्किंग के लिए बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, तो लिहाजा इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो नजायज़ तजावुज़ात है हटाई जाएँ और ताकि लोगों के लिए कोई पार्क है तमाम हो जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की जाए। गाड़ी तो चलो अंदर आती नहीं है, मोटरसाइकिलें तो कम से कम खड़ी करके हम बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों के लिए सब्ज़ी खरीद सकें। तो लिहाजा इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो ये नजायज़ जो ठेले खड़े हुए हैं इनको हटाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है। अगर मेरा कैमरामैन औरंगजेब दिखा सके तो इस वक्त मेरे अकब के अंदर मंडी का एक बाजार मौजूद है जिसके अंदर बड़ी जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो मौजूद है, जिसके बाद शहरी खासे परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया की जानिब से जल्द अज जल्द यहाँ से तजावुज़ात ख़त्म करवाई जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी हो सके। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर। चिन्योट डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अहदाफ बारे ब्रीफिंग ली। क्या अहकाम जारी किए, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ है। रेवेन्यू अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग ली गई है। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या डायरेक्शंस दी गई हैं? देखिए जी, एक तो रेवेन्यू रिकवरी का मामला है, वो हमारा रेगुलर फीचर है, वो चलता रहता है। उसमें अब क्योंकि ज़्यादा है कि गवर्नमेंट वीकली रिपोर्ट्स ले रही थी, तो एक तो उस हवाले से उनको डायरेक्शंस देनी थी कि आप वीकली जो उसकी रिपोर्ट्स के हवाले से प्रॉपर रिकवरीज करें। साथ असल में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, जैसे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि तमाम जो ज़री ज़मीन है उसके वंडाजात बनाए जाएँ और तकसीम की जाए। उस हवाले से प्रोग्रेस उनसे चेक की गई है और जहाँ जहाँ पर कमी बेशी थी उसको कहा गया कि दूर करें। हमारे 2-3 जो मौज़े हैं, स्पेशली जो शहर के मौज़ाजात हैं, उनकी भी डिजिटाइजेशन होनी है, तो वो एक प्रोसेस चल रहा है कि उनकी जमाबंदियाँ जो हैं जो पिछले 20 साल से नहीं बनी थी वो अपग्रेड की जा रही हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे थे। उसमें स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि महीने के अंदर, बल्कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर जो है
उनकी जमाबंदियाँ जो बना के उन मौजाजात को भी जो है वो डिजिटल के लिए जो है स्कैनिंग के लिए दे दिया जाए। तो ये जो गवर्नमेंट के बेसिकली बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम आगे उसको कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हों, उसमें ये तकसीम का अमल जो है और डिजिटाइजेशन की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो डाल की बिल्कुल जी। वेंडा जात और जो दीगर जो मामलात है रेवेन्यू के, इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अमले को हदायत दी हैं कि रेवेन्यू के लिए तमाम जो फील्ड ऑफिसर्स हैं और जो अफसरान हैं ये फील्ड में जाया करें। जी, वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वासा फैसलाबाद की नादिंदा सार्फिन के खिलाफ मुहिम ने स्पीड पकड़ ली। अक्टूबर के पहले 15 रोज में डेट डिफॉल्टर से 40 लाख रुपए रिकवरी, नादिंदगान के 74 सीवरेज वाटर सप्लाई कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। बिल्कुल, वासा फैसलाबाद की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के पहले 15 रोज की रिपोर्ट जो है वो एमडी वासा को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक डेड डिफाल्टर जिनकी जानिब से आज तक 1 रुपया जो है वासा को अदा नहीं किया गया, उनके 74 कनेक्शन जो हैं वो न सिर्फ मुनक़ता किए गए हैं बल्कि 40 लाख से ज़ायद की रिकवरी जो है वो भी डेड डिफाल्टर से यकीनी बनाई गई है। डायरेक्टर रेवेन्यू हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा कि ईस्ट और वेस्ट दोनों जोन के अंदर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, कितनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई और कनेक्शन जो है वो किस तरह से मुनक़ता किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एज ए डायरेक्टर रेवेन्यू वेस्ट, हमने वेस्ट में तकरीबन 51 कनेक्शन जो डेड डिफॉल्टर थे ना उसको डीसीओ करके उनसे हमने 18,60,000 रुपये रिकवरी की है और इंशाल्लाह बाकी हमारी कंपेन बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है और मज़ीद इंशाल्लाह इनसे हम डबल डेड डिफॉल्टर है कोशिश करेंगे मैक्सिमम डेड डिफॉल्टर को टच करके हम उनसे मैक्सिमम रिकवरी हासिल कर सकें। इसी तरह ईस्ट साइड पे माशाल्लाह उन्होंने 21,48,000 में रिकवरी डेड डिफॉल्टर से ली है और वहाँ पे 21 कनेक्शन हमने डीसीओ किए हैं और टोटल तकरीबन 40 लाख हमने ना से ज़्यादा 40,09,000 रुपये हमने रिकवरी डेड डिफॉल्टर से ली है और 15 दिनों में इंशाल्लाह इतनी रिकवरी हम और इनसे लेंगे। जी बिल्कुल, बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है ना सिर्फ वाटर कनेक्शन बल्कि सीवरेज कनेक्शन भी शामिल हैं। कुल 74 कनेक्शन ईस्ट और वेस्ट में मुनक़ता करने के बाद 40,09,000 से ज़ायद की रिकवरी डेड डिफॉल्टर से कर ली गई है। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद की नाअहली प्रोफेशनल टैक्स की वसूली के लिए सैकड़ों बड़े कारोबार की असेसमेंट ना हो सकी। जिला के 450 से जायद कारोबारी मराकज़ प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्टर्ड ही ना हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। फैसलाबाद में प्रोफेशनल टैक्स के मामले पर एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम की बड़ी गफलत सामने आई है और इस हवाले से ऑडिटर जनरल पंजाब की जानिब से एक्साइज की माली साल 2022-23 में टैक्स वसूलियों का ऑडिट किया गया है। तो ऑडिट रिपोर्ट में ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि फैसलाबाद में 450 से ज़ायद बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शादी हॉल्स, बेकरियाँ, मुख्तलिफ चेन के जो फूड पॉइंट्स हैं उनको प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्टर्ड ही ना किया जा सका और ना ही एक्साइज इंस्पेक्टरों और अमले की जानिब से इन अफराद की टैक्स के लिए असेसमेंट की जा सकी है। रिकवरी तो दरकिनार, ये लोग जो कि नेशनल चेन से या नेशनल चेन से मुंसलिक हैं और उसके साथ साथ बड़ी शादी हाल हैं, मार्कियाँ हैं, इन लोगों से टैक्स वसूल करना तो दरकिनार, इनको टैक्स नेट में ही रजिस्टर्ड न किया जा सका, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। शुक्रिया उमैर अजमत। फैसलाबाद सोलर पैनल केबन्स भी वार्डन्स को चौक में खड़ा ना कर पाए। लाइट, पंखा, फिक्स सीट और पीने के पानी की सहूलत से मुज़य्यन जदीद केबन्स एक हफ्ता कबल नस्ब किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। आज जुमा का रोज है और ठीक पिछले जुमे फैसलाबाद में मुख्तलिफ चौकों में 3 चौक में जो कि सतारा टावर चौक है, जफर अली चौक है, जफर अली मोड़ भी जिसे कहा जाता है, और साथ में चनाब क्लब चौक में जदीद केबल्स जो है सोलर केबल्स नस्ब किए गए ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से, ताकि जो वार्डन्स हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से चौक में खड़े होकर दे सकें। लेकिन एक हफ्ता गुजरने की देरी हुई है कि केबल्स चौक से गायब होते दिखाई दिए हैं और साइड पे खड़े कर दिए गए हैं और जो साइड पे केबल्स मौजूद हैं उसमें भी वार्डन्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, जदीद केबल्स जो कि सोलर पैनल से रास्ता थे, पंखे लगे थे,
फिक्स्ड सीड और जो पानी पीने का साफ पानी मुयस्सर था उसमें, और मकसद सिर्फ ये था कि जो वार्डन्स हैं वो साए की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और चौक को छोड़ देते हैं और वहां पर गहमा गहमी पैदा हो जाती है। उससे बचने के लिए वार्डन केबिन के अंदर मौजूद रहे और केबिन को कई सहूलियात से रास्ता भी किया गया, लेकिन वो भी कोई सूदमंद साबित नहीं होती दिखाई दे रही। और ये अभी मैं जिस चौक में मौजूद हूँ, सतारा टावर चौक है, इसके बिल्कुल वस्त में मौजूद था सोलर पैनल बेस्ड केबिन, जो कि अभी हमें अतराफ में मौजूद तो दिखाई देता है लेकिन चौक में नहीं है, और उसमें भी जो वार्डन है वो कम ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो तो जो कि तो मौजूद होनी ही थी, लेकिन जिस मकसद के लिए सोलर पैनल बनाए गए, अखराजा लगाए गए, अवाम का पैसा खर्च किया गया, वो मकसद फिर भी हासिल नहीं हो सका और फकत एक हफ्ते में जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी कारकर्दगी खुलकर सामने आ सकी कि जो अच्छे सोलर पैनल बेस्ड केबल्स है वो भी उनको चौक में खड़ा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नारो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी आज और कल होने वाले पेपर मुलतवी कर दिए। ओपन यूनिवर्सिटी के 18 अक्टूबर को होने वाले पेपर 17 दिसंबर को होंगे। 19 अक्टूबर को होने वाले पेपर 18 दिसंबर को होंगे। पंजाब में दफा 144 नाफिज होने पर पेपर मुलतवी किए गए। पंजाब हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल्स आउटसोर्स करने का दूसरा मरहला। फैसलाबाद के 114 स्कूलों में सिर्फ 2 असातिज़ा मौजूद, बच्चों की तादाद भी 100 से कम। CEO एजुकेशन को दूसरे फेज में आउटसोर्स किए जाने वाले 114 स्कूल्स की फहरिस्त भी भिजवा दी गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से, जी बताइएगा। हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया था कि नाकिस कारकर्दगी वाले जो स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट ऑनर्स के हैंड ओवर किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के हवाले से दूसरी फहरिस्त जो है वो जारी की गई, जिसमें फैसलाबाद के 114 स्कूल्स क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। क्राइटेरिया ये था कि जहाँ पर असातिज़ा की तादाद महज 2 होगी और बच्चों की तादाद 50 से लेकर 100 तक होगी। ऐसे नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल जो हैं उनको मेंशन किया गया और इस हवाले से फैसलाबाद की दूसरे फेज में जो फहरिस्त सामने आई, 114 स्कूल्स मजीद आउटसोर्स किए जाएंगे। इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है शहरियों से और इसके साथ साथ जो निजी स्कूल मालिकान हैं उनसे और NGOs जो है उनसे दरख्वास्तें तलब की गई हैं स्कूलों को हैंड ओवर करने के हवाले से, ताकि वो इन स्कूल्स का इंतजाम चलाएं जहां से जो दो टीचर तैनात हैं स्कूलों में उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बच्चे और तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो इदारे हैं वो प्राइवेट ऑनर के हैंड ओवर किए जाएंगे ताकि वो यहाँ पर अपना स्टाफ रख के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इनको चलाएं, यहाँ पर बच्चों का दाखिला बढ़ाएं और वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। इस हवाले से दूसरी फहरिस्त जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई है। फैसलाबाद के मजीद 114 स्कूल जो हैं वो प्राइवेट ऑनर को सौंपे जाएंगे ताकि वो इन स्कूल्स को बेहतर तौर पर चलाएं, यहाँ पर बच्चों की तादाद बढ़ाएं और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हिम्मत कार्ड की तकसीम में टोबा टैक्सिंग बाजी ले गया। 92% माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम। पंजाब भर में रकम और कार्ड्स की तकसीम के अमल में महकमा सोशल वेलफेयर टोबा पहले नंबर पर आ गया। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से, जी बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड की तकसीम का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। टोबा टैक्सिंग पंजाब का वो पहला ज़िला है जिसने 92% से ज़ायद माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड तकसीम कर दिए हैं। इसी वाले से महकमा सोशल वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर मारत से बात करते हैं, जानते हैं असल कितने लोगों तक आप जो है वो कार्ड पहुँचा सके हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अब तक रह गए हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। जी, टोबा टैक्सिंग को हिम्मत कार्ड 1128 वसूल हुए थे बैंक ऑफ पंजाब से और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 1044 लोगों को जो है हम वो तकसीम कर चुके हैं और ये परसेंटेज बनती है 92.55%। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में टोबा टैक्सिंग हिम्मत कार्ड की तकसीम में सबसे आगे है, पहले नंबर पर है। तो ये मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारे स्पेशल पर्सन से खुद भी रब्ता किया और उनके घरों में टेलीफोन करके किसी न किसी तरह उन तक पहुँचे हैं ताकि वो आके अपना हिम्मत कार्ड वसूल करें। तो मैं अपनी टीम को भी शाबाश देता हूँ। कुल 84 अफराद रह गए हैं, किसी का मोबाइल नंबर दुरुस्त नहीं है, किसी ने ID कार्ड का अंदराज जो है वो गलत कर दिया, जबकि कुछ अफराद ऐसे हैं जो इंतकाल भी कर गए हैं। तहम 10,500 रुपये हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुआवजा दिया जाएगा, आज़ादिया दिया जाएगा मजदूर अफराद को। तहम इस हवाले से जो राय अब्दुल शकूर मारत हैं उनका ये कहना है कि बकिया अफराद को भी दरखास्तें मसूल हो रही हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। उनके बाद जो उनको नया ऑर्डर आएगा, जो नया लेटर आएगा, उस पर भी उनको कार्ड पहुँचाया जाएगा। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
टोबा टैक्सिंग के बाद अहमदपुर सियाल में किसान कार्ड्स की तकसीम का अमल जारी। 4000 में से 3100 कार्ड्स तकसीम कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल में। मेरे साथ मौजूद हैं फील्ड असिस्टेंट महकमा ज़राअत तौसी अहमदपुर सियाल जनाब अशफाक गिलानी साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि किसान कार्ड की अहमदपुर सियाल में क्या सूरत हाल है, कुल यहाँ पर कितने किसान कार्ड जो हैं बन कर आए थे और कितने जो हैं तकसीम किए जा चुके हैं और अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुए। सर बताइएगा क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहसील में टोटल 4000 कार्ड आया है बनकर, जिसमें 3100 कार्ड हमने डिलीवर कर चुके हैं। बाकी 900 कार्ड जो है वो हमारे मौजूद है। हम उसको दिन रात हमारे फार्मर जो किसान हैं फील्ड असिस्टेंट उनको कॉलिंग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2-3 दिन में वो डिलीवर हो जाएंगे। तो ये एक्टिव कब तक हो जाएंगे। एक्टिव इनकी पहले 15 तारीख थी एक्टिवेशन की, आप डिटेल बताया जा रही 22 तारीख को ये एक्टिव हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी फील्ड असिस्टेंट महकमा ज़राअत की, तो उनका यही कहना है कि 900 कार्ड अभी मजीद बाकी हैं जो 2-3 दिन में डिलीवर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो ये कार्ड हैं पहले 15 को इन्होंने एक्टिवेट होना था, अब ये कार्ड जो हैं 22 अक्टूबर को ये कार्ड जो हैं फ़ाल हो जाएंगे। जी तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।